So good morning students. So today we are going to learn about the derivative of parametric functions. Okay. Derivative of parametric functions. So before this we should know what is parametric function. Okay, we know two types of functions are there, that is explicit and implicit. Okay, so another type of function is there which is parametric. In implicit we can represent x in terms of y or y in terms of x, but in explicit function we can represent it x in terms of y or y in terms of x, but in implicit function we cannot represent x in terms of y or y in terms of x. So another type of function is there, that is parametric function, that is both x and y are related to another variable, that is third variable. इसमें क्या होगा, x और y दो वेरिएबल होंगे, वो थर्ड वेरिएबल के साथ लिंक होगा, वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होंगे, बट इट रिलेटेड टू द थर्ड वेरिएबल. वो थर्ड वेरिएबल के साथ वो क्या होगा, रिलेटेड होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन. इफ x इक्वल टू सपोज f of t and y equal to suppose g of t. ओके, तो देखो x equal to f of t and y equal to g of t, then we can say that x is related to a third variable t and y is also related to the third variable t. Okay, then we can say that this is a parametric function. Then it is a parametric function. Okay, then it is a parametric function. Now we have to find out its derivative of the parametric function. ये जो parametric function उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे. सपोज x इक्वल टू f of t है एंड y इक्वल टू g of t है, देन वी कैन फाइंड आउट dx by dt. We can find out dx by dt. Okay, similarly y is a function which is in terms of t, then we can find out dy by dt. So after find out dx by dt and dy by dt, simply if we divide dy by dt by dx by dt, then we get dy by dx. This is the method to find out the derivatives of parametric functions. Okay, so let's go through one example. What is the example? Suppose one example is there. If x equal to sec theta, your theta is the variable, third variable, and y is equal to e to the power theta. Okay, then find dy by dx. We have to find out dy by dx. So x equal to sec theta is there, x equal to sec theta, then we can find out dx by d theta.
हम लोग डी थीटा निकालेंगे। थर्ड जो वेरिएबल होगा उसी के पर्सपेक्टिव में हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। सो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ व्हाट, in place of x you can put sec theta. So what is the derivative of sec theta? Derivative of sec theta is sec theta into tan theta. Okay, sec theta into tan theta. Similarly, y equal to e to the power theta. So dx by d theta is, sorry, dy by d theta is d by d theta of e to the power theta, which is equal to e to the power theta. ऐसा ही होता है ना। देन dy by dx इक्वल टू dy by d theta होल डिवाइडेड बाय dx by d theta. सो dy by d theta मिला है हम लोगों को e to the power theta एंड dx by d theta इज sec theta into tan theta. Okay. So in this way we can find out the derivative of some parametric functions. तो ये एक्सरसाइज पूरा गया, पूरा ऐसा है, पूरा सिंपली ऐसा क्वेश्चन इसमें आएगा। x इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल देगा, y इन टर्म्स ऑफ एक वेरिएबल देगा, तुम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा dx बाई डी थीटा, सॉरी dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो अगर dx बाई dy दिया होगा तो इसको पलटा देंगे, dx बाई dy निकालेंगे। तो ये है तुम्हारा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ओके, तो ये एक्सरसाइज गया। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। उसमें क्या है, उसमें है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ओके, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, फर्स्ट ऑर्डर पढ़े हैं। अभी तक हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हायर ऑर्डर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स किसी भी एक फंक्शन को एक बार डेरिवेटिव निकालना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स किसी भी एक फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव निकालना, है कि नहीं। उसी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसी को फिर से एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे, देन वी गॉट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर क्या होगा, हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। जैसे कि सपोज लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन, देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स निकालना। ठीक है, dy बाई डी एक्स, इसको एक बार डेरिवेटिव जैसे करते हैं, है कि नहीं। दैट मीन्स उसको एफ डैश एक्स भी लिखते हैं ना, एफ डैश एक्स निकालना। और इट कैन बी रिटन एज y1, y1 नीचे 1 लिखेंगे। इसका मतलब जो y जो है वो एक बार डेरिवेटिव हुआ है। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स y जो होगा वो दो बार डिफरेंशिएट होगा, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, d बाय डी एक्स ऑफ dy बाय डी एक्स। और एक बार डेरिवेटिव होगा dy बाय डी एक्स का, इसको हम लोग लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर।
ओके। और इसको हम लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स, ऐसे लिखा जाता भी है एफ डबल डैश एक्स। एक बार डैश देंगे तो एक बार डेरिवेटिव, दो बार डैश देंगे तो दो बार डेरिवेटिव। और इसमें हम लोग y के नीचे 1 लिख रहे हैं तो y के नीचे 2 लिखेंगे तो क्या होगा, ये दो बार डेरिवेटिव है ना। तो क्या कर रहे हैं, किसी भी एक फंक्शन को हम लोग दो बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो होगा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स और y2। ओके, तो देखो एक एग्जांपल लेंगे, दो एग्जांपल लेंगे, उसको दो एग्जांपल को अभी सॉल्व करेंगे। तो example is there, that is example 1. If y equal to x cos x, then find y2 और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, जो भी दे सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, पहले क्या करेंगे हम लोग y1 निकालेंगे। सो y1 इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स, दिस इक्वल टू cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस x into d by dx of cos x. So this will be cos x, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस x, the derivative of cos x is minus sin x, so we got minus x sin x. This is our y1, that is first derivative. So we are going to find out y2. So y2 will be, y2 equal to, we got y2h, the derivative of y1 na, this is d by dx, so the d by dx of cos x minus x sin x, so the derivative of cos x is, derivative of cos x is minus sin x minus, here two functions are there which is multiplied to each other, so we can apply product rule of derivative here na. So second function, that is sin x into derivative of x plus x into d by dx of sin x. Okay, so minus sin x minus derivative of sin x is, sorry, sin x is there, derivative of x is 1, so we got only sin x, that is minus is there, so minus sin x plus, so here we can put minus x, the derivative of sin x is cos x, so this is our y2, so we can write it as minus 2 sin x minus x cos x, minus 2 sin x minus x cos x is there. Okay, then we are moving towards another example, and example 2 is, if y is equal to sin inverse x, if y equal to sin inverse x, then prove that, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला जो मैं एग्जांपल जो किया था, y2 डायरेक्ट निकालने के लिए बोलेगा, वरना ऐसा क्वेश्चन देगा, ऐसा टाइप का, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन देगा। एंड प्रूव दैट 1 minus x square into y2
माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू 0। ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। ओके, माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू 0। तो क्या होगा, पहला जो चीज दिया है वो क्या दिया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, ये जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और उसको 0 करेंगे। ये चीज हो सकता है। वरना क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जैसा स्टेप करने जा रहा हूं वैसा करने से भी चलेगा। ठीक है, पहला चीज y1 निकालेंगे। So y1 is derivative of sin inverse x, that is 1 by root over of 1 minus x square। ओके, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, y2 निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। लेकिन उसमें क्या होगा, ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1/2 है। तो फिर y2 निकालना, y2 वैसे भी करके निकालेंगे, निकालना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, ये जो इधर जो है इसको इस साइड डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेने से और फिर एक बार डेरिवेटिव कर लेने से क्या होगा, ज्यादा इजी हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट y1 into root over of 1 minus x square इक्वल टू 1। हम लोग को y2 चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको और एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसमें सेकेंड फंक्शन दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y1 प्लस y1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 दैट इज 0। 1 का डेरिवेटिव कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, है कि नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y1 प्लस y1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस implies दैट रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज देयर। ओके, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y1। तो डेरिवेटिव y1 को और एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज y2। उसको हम y2 लिखेंगे प्लस y1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर है, दैट मीन्स उसका पावर कितना होगा, हाफ होगा, which is equals to 0। So this implies that 1 minus x square root over into y2 plus y1 into, इसमें क्या होगा, चेन रूल अप्लाई होगा ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ है, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ, नीचे जो होगा वो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। तो खाली हम लोग को मिला रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस y1 इंटू, इसमें देखो इसका पावर हाफ है, मीन्स इसका पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या होगा, y1 इंटू 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x व्हिच इज इक्वल्स टू 0। तो खाली हम लोग को क्या मिला, इसमें खाली हम लोग को मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर इंटू y2 प्लस y1
इंटू ऊपर हैगा -2x और नीचे कितना है, नीचे 2 है। 1 माइनस एक्स का पावर माइनस हाफ है ऊपर, तो नीचे आएगा तो क्या होगा, प्लस हाफ होगा। प्लस हाफ मीन्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखो दिस इंप्लाइज दैट ये जो 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब नीचे क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर जो है वो एलसीएम गया। देन वी गॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, तो खाली मिलेगा हम लोगों को 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस x इंटू y1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये नीचे जो है उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स बाय 1 इक्वल टू 0। ये चीज हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है। सो यही जो 2 टाइप का जो एग्जांपल है वही खाली हम लोग को मिलेगा। ओके, तो आज का क्लास इतने में रहने देते हैं, बाकी जो होगा उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे। ओके।